Hey, welcome all the devotees for Harinam Chintan. And today we are in a very auspicious place nearby Kurma Kshetra. All of you might be aware that Sri Chaitanya Mahaprabhu, after he took sannyas, he was planning to do a South Indian tour. So he leaves from Jagannath Puri and then he comes to Kurma Kshetra, where he meets a Brahmana. This Brahmana wanted to join Mahaprabhu in his tour, giving up his family. But Mahaprabhu has taught him that how Mahaprabhu mentioned that how the purpose of life is to attain Krishna Prema, love for Krishna. And that can be done only by taking shelter of chanting. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. So when he says, then I have so much obligation to home, 5 children, something. Then Chaitanya Mahaprabhu says, no, take care of that responsibility. Along with it, you can chant because chanting of holy name doesn't depend on the type of varana or ashram you are in. The only qualification which Krishna sees is, are you a devotee, surrendered to him or not? Doesn't see which ashram you are in. Then this way Mahaprabhu encouraged him to continue. And he said, you continue like this, soon you will be able to develop Krishna Prema. So today after this class, we will be traveling at around 8 o'clock or so. 8:15 we are planning to do. Today we'll have a small class. So we'll go to Kurma Kshetra. From there, they are planning to go to another place, Arisa Valley. The place of sun god. Surya Mandir is there. From there, we'll go to Krishna desires Simhachalam, the place where Varaha Narsimha is there. And with me here, we have Kamaraj. So Kamaraj Prabhu is by his association, we are able to yesterday take darshan of Jagannath ji. I had no plan how from Jamshedpur I'll go to Jagannath Puri. I went to Jagannath Puri, we had a good darshan of Mahaprabhu places. That nice prasad also. And after that, now we came to Srikakulam Road. From here we are going to Kurma Kshetra and other places. So then I'll be going to his house also to meet his family. From there I will go down for my home. That is the plan. Mahaprabhu has traveled so many places. You get an opportunity to visit all those places and understand the significance of the life and teachings of Chaitanya. Being in Jagannath Puri, you can see Mahaprabhu's life and teaching very far. Okay. So now we will have this song. We'll go to the Yamuna Dumati Samsare Vidore Pujiya Adinuami Nadumati Samsare Vidore Avani Jana Kona Mahajane Matai Dile Dumi Avani Jana Kona Mahajane
ठाकुर कहते हैं हम इस संसार के विदर में जन्म जन्मों से पड़ा हूं और भगवान ने क्या तब निज भगवान अपने खुद की जन खुद के पार्षदों को महाजनों को यहाँ पे भेजा हटाया हटाए हटाए धीरे धीरे फिर वो महाजन आके क्या किया दया करे मोरे पतिता देविया कहिलो मारे दिया दया करे मोरे पतिता देविया कहिलो मारे दिया दया करे मोरे पतिता देविया कहिलो मारे दिया पतिता देविया कहिलो मारे दिया ओ हे दीन जना सुनो बालो कदा लसित हो बेगिया ओ हे दीन जना सुनो बालो कदा लसित हो बेगिया। ये हमारे पास आके कहते हैं सुनो एक सुंदर कथा आपको कहना चाहता हूँ वेरी गुड न्यूज। हर दिन सुबह हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ने का प्रयास करते हैं ना मोबाइल में हो और हम क्या देखते हैं हम देखना चाहते हैं और कुछ बस दिखता है और सुनते हैं और कुछ। हर जगह पर नेगेटिविटी इधर ये गोलमाल हुआ है घमंड हुआ इसका मृत्यु हो गया क्या किया है इस प्रकार न्यूज सिर्फ आपके जीवन की जो दिशा को ना थोड़ा बदल देते पर हर दिन रेडर होता है जैसे शिप में रेडर हमारा लाइफ में भी एक रेडर होता है और हम क्या करते हैं इतना कुछ डिस्ट्रैक्शंस के माध्यम से रेडर को इधर उधर करते हैं और कुछ दिन के बाद या फिर कुछ महीने के बाद पता चलता है हम दूसरा दिशा चलते ये सब क्यों हो रहा है इस प्रकार की चीज हम अपनाते हैं हर दिन सुनते हैं और फिर उस हिसाब से आपको दिशा बदल जाती न्यूज शुड बी भालो कथा सुनो भालो कथा उल्लासित हो गई है ऐसा न्यूज सुनना चाहिए जो आपके मन को उल्लासित कर गारंटी दे सकता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आपका मन बहुत उल्लासित हो गया है तो बोल सकते हैं enthusiastic हो गया बहुत एनकरेजमेंट मिल गया है मैं अपना दिशा ओनली इधर इट इज लाइक ना किसी के प्रति ईर्ष्या बढ़ता है या फिर न्यूज देख के निरुत्साह हो जाता है व्यक्ति या फिर न्यूज देख के व्यक्ति को लगता है कि शायद मेरी दिशा बदलना चाहिए इस प्रकार की हमेशा एंजाइटी फियर टेंशन इस प्रकार की चीज को ही मन में उत्पन्न करती है परंतु यहाँ जो महाजन जो आए उन्होंने क्या कर रहे हैं दीनहीन जने सुनो बालक उल्लासित हो गई क्या है वो बालक कदम तुम्हारा तारीते श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतार 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 तुम्हारे नो पता दीनहीन जने करिलेन भव पार तुम्हारे नो पता दीनहीन जने करिलेन भव पार कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप का अवतार लिया अवतार लेके क्या कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे जैसे दीनहीन
हीन, कुछ लोग दीन है, कुछ लोग हीन है। सब प्रकार के पाप जो किया है, और सबसे नीचे घिरा हुआ व्यक्ति हीन जने कोरी लेने भव पार, क्या कर रहे हैं कि सबको इस भव सागर की पार करने का एक सामर्थ्य शक्ति को दे रहे हैं। और कोई कह सकते हैं अरे ये चैतन्य कौन है, तो इतना शक्ति कहाँ से बोला, कहाँ से आया, कहाँ इनके बारे में बताया, बताइए। हर एक न्यूज जो भी दे रहे न्यूज़पेपर में मान लो, चैतन्य कौन है? भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं वेदेरा प्रतिज्ञा प्रकिभातरे रुक्मवर्ण विप्रसूत, वेदेरा प्रतिज्ञा प्रकिभातरे रुक्मवर्ण विप्रसूत, वेदेरा प्रतिज्ञा प्रकिभातरे रुक्मवर्ण विप्रसूत, प्रतिज्ञा रुक्मवर्ण विप्रसूत, महाप्रभु नामे नदिया माताई संगे बाई अवधूत, महाप्रभु नामे नदिया माताई संगे बाई अवधूत। वेद का प्रतिज्ञा को रखने के लिए प्रतिज्ञा रखी भार तारे रुक्म वर्ण विप्रसूत। वेदों में बताया है कि कलयुग में एक भगवान स्वयं चंद अवतार के रूप में आते हैं और सोने के रंग को एक्सेप्ट रुक्म वर्ण विप्रसूता, ब्राह्मण के परिवार में वो जन्म लेंगे। इस प्रकार इस हाथ को जो वेदों में बताया उसको रखने के लिए उन्होंने नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्रा और सची माता की गति से भगवान ने जन्म लिया, और उनकी पूरा रंग का कांति है सोने, पिघला हुआ सोने जैसे। उस पिघला हुआ सोने की अंगरखा को क्यों एक्सेप्ट किया महाप्रभु ने? कहते कि कृष्ण राधा रानी के प्रेम को समझने के लिए और राधा रानी के भाव स्वीकार, और राधा रानी खुद की रंग का कांति है गौरांगी, सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कहते हैं, तो राधा रानी का श्लोक। उस हिसाब से कृष्ण जब राधा रानी के भाव में है, उनके रंग का कांति भी बदल गए, रुक्म वर्ण विप्रसुता, और महाप्रभु नामे नदिया माता या संगे भाई, और उन्होंने अकेले नहीं, उनके पार्षदों के साथ आए थे। उस पार्षदों में विशेष करके कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु अवधूत। कौन है? नित्यानंद आए। रिसेंटली जब गौशाला में, इस्कॉन गौशाला में जब प्रतिष्ठा हुआ निताय गौरांग, ये कॉम्बिनेशन बहुत स्पेशल है। निताय गौरांग दोनों ने इस दुनिया को उद्धार करने का एक सत को रख के प्रकट हुआ। इसलिए निताय गौरांग जैसे प्रकट हुआ, हम देखते हैं कि वहां पे गौशाला में बाहर में बहुत रिनोवेशन होने लगे, गवर्नमेंट में भी रोड बनाने लगे। तो ये स्पेशलिटी अभी क्यों है कि वहां निताय गौरांग, तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों की जो कॉम्बिनेशन है, पूरा अभी कोलकाता में श्रील प्रभुपाद की गुणगान बढ़ने वाले, बहुत जरूरी है। फिर आपको उसमें क्रेडिट चाहिए कि नहीं, आपके ऊपर, आप उसमें भाग लेंगे तो क्रेडिट। आप बोलेंगे प्रभु मैं घर पे बैठूंगा, थोड़ा आराम करूंगा, तो प्रसाद के टाइम पे आ जाऊंगा, प्रसाद खा के चले जाऊंगा, तो इस प्रकार फिर महाप्रभु कहेंगे ठीक है प्रसाद लेके चले जाओ। जब आप भाग लेंगे महाप्रभु की जिस मिशन कोलकाता में प्रभुपाद की गुणगान बढ़ाने का और जीवों को उद्धार करने का, उसमें आप भी स्वयं भाग लेंगे तो आपका भी क्रेडिट आएगा, आपको भी रिकॉग्नाइज करेंगे भगवान। फिर जब भगवान खुद रिकॉग्नाइज करेंगे आपको, फिर और क्या चाहिए मुक्ति के लिए। जो 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 आके ओनली कभी कभी आएगा, दर्शन देके चले जाएगा, प्रसाद देके, तो भगवान बोलेगा ऐसे ही रहो फिर पूरा जन्म जन्म के बाद, जन्मनी जन्मनीश्वरे।
भगवत प्रसाद चाहिए, इस प्रकार भगवत प्रसाद ही लेते थे। शास्त्र में एक वर्ष है ना, न धनम न जनम न सुंदरी कविता काम ये मम जन्मनीश्वरे भगवान जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति है तो की। कुछ लोग क्या है, भक्ति नहीं चाहिए तो भगवान भक्ति प्रसाद चाहिए, प्रसाद के चक्कर में बैठ जाएंगे बस, और कुछ नहीं करने का समय नहीं मिलता है, बिस्तर से उठ ही नहीं पाएंगे भक्ति करने के लिए। तो भगवान बोले कि बिस्तर में सोते रहिए अब जन्म के बाद, तो इस तरफ की भक्ति नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। To take some pains, there is no gain without pain. Huh? What is it? No gain without pain. No pain, no gain. तो जब तक हम श्री चैतन्य महाप्रभु की पार्षदों की मतलब पार्षदों की सेवा के रूप में हम लोग जब टेंशन नहीं लेंगे, एंग्जाइटी नहीं लेंगे, फिर वैसा ही रहेगा। तो वेदेरा प्रतिज्ञा रखे बारे तारे रुक्म वर्ण विप्रस्त वर्ण महाप्रभु नामे नदिया माताय संज्ञ भाई नंदा सोता जीनी चैतन्य गोसाई निज नामा कोरिता नंदा सोता जीनी चैतन्य गोसाई निज नामा कोरिता नंदा सोता जीनी चैतन्य गोसाई निज नामा कोरिता चैतन्य गोसाई निज नामा कोरिता हारिलो जगता तुम्ही हो जाइया तमैजा कोरिता हारिलो जगता तुम्ही हो जाइया कहते हैं नंद सुता जी ने, स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, नंद सुता जी ने चैतन्य गोसाई क्या कर रहे हैं, निज नाम परिदान, खुद के नाम कृष्ण के नाम सबको दान में दे रहे हैं। और इस नाम जब स्वीकार करेंगे तारिलो जगत हो जाइए वो निज परित्राण। वो कहते हैं कि अभी महाप्रभु स्वयं आके हरिनाम को बांट रहे हैं, आप भी स्वीकार करिए, भगवान के नाम स्वीकार करिए, शुद्ध रूप में उस नाम की उच्चारण करने का प्रयास करिए। जब नाम जप में 3 प्रकार के रहते हैं, हम लोग उसी में आज चर्चा करेंगे। एक है नाम अपराध, जो हरिनाम जो करते हैं उसको सब अपराध के साथ करते हैं, मतलब उसमें ध्यान नहीं है, पहले चीज है ध्यान नहीं रहते नाम पर, तो वो नाम अपराध की जप। तो दूसरा होता है नामाभास, इसके बारे में हम लोग चर्चा किया था लास्ट टाइम। नामाभास में तो उसमें जब प्रयास चल रहे हैं तो ना अपराध को छोड़ने का सिंसियर प्रयास, सीरियस प्रयास चल रहे हैं कि नाम अपराध नहीं करना है, और आभास, उसको नामाभास कहते हैं। और तीसरा है शुद्ध नाम, जब शुद्ध नाम मतलब प्योर भगवान के नाम को पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित होते हुए हम नाम का जप कर रहे हैं, उस शुद्ध नाम की वजह से क्या होता है, तरिलो जगत, पूरा जगत हार होता है, तारित होता है, तुम्हें हो जाए लोहे निज परित्राण, व्यक्ति अपना जीवन में परिवर्तन को महसूस कर सकते। तो फिर कहते हैं सेकादा सुनिया पशियाची नाथा तुम्हारा चरण तले रेगादा सुनिया पशियाची नाथा तुम्हारा चरण तले रेगादा सुनिया पशियाची नाथा तुम्हारा चरण तारे गाना सूरिया आसियाजी नाथ तुम्हारा चरण थारे भक्ति विनोदा
कंदिया कंदिया अपना कहीं बोले विनोदा कंदिया कंदिया अपना कहीं बोले अकाति विनोदा कंदिया कंदिया अपना कहीं बोले विनोदा कंदिया कंदिया अपना कहीं बोले। ये कथा सुन के जब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार प्रकट हुआ है, ये महाजन आके सबको कह रहे हैं आप भी हरिनाम के आश्रय लेने के लिए। ये कथा सुन के कहते मैं खुद आ गया है भगवान के चरण के सामने। और भगवान के चरण के नहीं कहते, यहाँ पे वो निज जन महाजन के चरण के सामने आके अपना निवेदन कर रहे हैं। रोते रोते भक्तिविनोद ठाकुर कांदिया कांदिया, कांदिया मतलब रोना, बहुत हृदय पूर्वक हो इस फॉर्चून को रिमेम्बर करते हो। क्या था उनका फॉर्चून? उनको मौका मिला है एक ऐसा महाजन की शरणागति, उस शरणा महाजन के संग में वो अपना दुख की कहानी कहते हुए अभी श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया हरिनाम को पूर्ण रूप में स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस प्रकार हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु इस उद्देश्य से आया है हरिनाम बांटने की। तो इस हरिनाम बांटने के जिस पर्पस के लिए महाश्री चैतन्य प्रकट हुआ है, तो स्मरण करते हुए ही हम आज की जो चर्चा करेंगे श्री हरिनाम चिंता, बहुत सुंदर है। पिछले बार हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, किसी को कुछ उसमें पॉइंट याद है, बोलना चाहते हैं? तो जो अटेंडेड लास्ट वीक हम लोग हरिनाम सोमनाथ प्रभु, प्रियंका, आकाश प्रभु, रौनक, अर्णव प्रभु, राजू, कामराज थे। अब हम का सेटल नहीं करते। यस प्रभु। प्रभु मतलब आप कुछ बोलने वाले हैं प्रियंका? यस प्रभु। क्या बोलेंगे? Yes, Krishnaraj. So like you started with chanting is not a process, it's a relationship with yes. वो तो मैंने पहले क्लास से भी बता रहे थे, चैंटिंग एक प्रोसेस नहीं है, एक रिलेशनशिप है। पिछले बार हम लोग विशेष करके नामाभास के बारे में, नामाभास के बारे में चर्चा कर, इसमें विशेष करके 2 पॉइंट आता है। नामाभास इसका श्रद्धा नामाभास, अश्रद्धा नामाभास। अश्रद्ध नामाभास, आभास, आभास मतलब क्या होता है? डिम लाइट। मतलब मान लीजिए मैं जिस रूम में बैठा हूँ उसमें लो वोल्टेज हो जाता है, लो वोल्टेज होने से क्या होता है? लाइट पूरा डिम हो जाता है। इसी प्रकार कभी कभी हरिनाम में श्रद्धा नहीं है उतना। अश्रद्ध नामाभास में क्या होता है? श्रद्धा उतना नहीं है, बहुत बहुत छोटा, कम है, उसमें व्यक्ति आगे चलता है। बेसिकली जो व्यक्ति मतलब हम सब भक्त दूसरे शुद्ध भक्त के हरिनाम को देख के वाह करते हैं। जैसे हम कोई भी शुद्ध भक्त बैठ के जप कर रहे हैं, जब तक भगवान के बारे में उनका हरिनाम क्या क्लास में कह रहे हैं, उस उनके बहुत बढ़िया है कहते हैं ऐसा ना। आप परम पूज्य राधा महाराज की जप देखेंगे, बोलेंगे बहुत बढ़िया जप। या फिर आप कोई भी सन्यासी देखेंगे जो हमेशा भक्ति विद्यानपुर हमेशा
क्लिकर लेके अपना हरिनाम करते थे, पूरा रात को भी जाएंगे उनके रूम पे हरिनाम करते थे, कब सोएगा पता नहीं। आपको बहुत अप्रिशिएट मिलता है, अप्रिशिएशन मिलता है, अप्रिशिएशन करते हैं आप, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, अरे इतना अच्छा बढ़िया जप कर। परंतु जब अपना खुद का जप आते हैं उसमें तेरा दूसरों की श्रद्धा देख के आप अप्रिशिएट करते हैं, परंतु अपना जप में उतना श्रद्धा नहीं। इसको कहते हैं श्रद्धा नामाभास, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहते हैं इसको। प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन दूसरों में देख के आपको लगता है कि मैं भी ऐसा ही जप कर रहा हूँ उनके साथ बैठ के। तो ये ये जिसको कहते हैं प्रतिबिंब नामाभास, ये श्रद्धा नामाभास में एक पार्ट है, प्रतिबिंब श्रद्धा नामाभास। ये नामाभास ज्यादा मदद नहीं कर पाते थे। अश्रद्ध नामाभास मतलब 4 प्रकार की चीज करते हैं, जिसमें लास्ट टाइम डिस्कस किया था 4 काइंड्स ऑफ अश्रद्ध नामाभास। संकेत, संकेत मतलब हिंटिंग, आप वो नहीं बट और कुछ हिंट कर रहे हैं, जैसे ये हुआ था अजामिल के साथ जो संकेत। और परिहास, जोकिंग, लोग जोक करते हैं दूसरों की जप लेके, अरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये भी ये अश्रद्ध नामाभास। तीसरा है स्तोभ, मॉकिंग, मॉकिंग मतलब दूसरों को आप लोग स्पेशली ये कर रहे हैं। लेकिन जरासंध, जरासंध जो किया था हेलन था, परिहास था, जोकिंग था कृष्ण के साथ, बट शिशुपाल जो किया है वो मॉकिंग, इंटेंडेड टू ऑफेंड कृष्ण by telling many names, अरे तुम रणचोर है, तुम माखन चोर है, मतलब हिंटिंग टू ऑफेंड वाइस कृष्ण, वो है स्तोभा। और 4th वन हेला, हेला मतलब इनअटेंशन, इनअटेंटिवली कोई व्यक्ति जब करते हैं। हाँ, महाप्रभु जब प्रकट हुआ था, लेक्चर लोग जब, ये 4 प्रकार की जो हरिनाम है उसको अश्रद्ध नामाभास। अश्रद्ध मतलब उसमें श्रद्धा नहीं है नाम के प्रति, जस्ट लाइक अजामिल ने श्रद्धा नहीं नाम में, वो अपना लड़का को बुला रहे, वो संकेत अश्रद्ध नामाभास। दूसरा परिहास नामाभास जो जरासंध ने किया है, और स्तोभ नामाभास जो शिशुपाल ने किया है, और हेला अश्रद्ध नामाभास जो मुसलमान लोग कर रहे थे जब महाप्रभु प्रकट हो रहे। पर महाप्रभु जब प्रकट होते सब लोग हरि हरि करने लगे, तो वो लोग भी हरि 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 इन्हें टेंशन, ठीक है वो कर रहे हम भी करेंगे। अभी आप देखेंगे संकीर्तन हो रहे हैं और आप बिजी है आपके मोबाइल के साथ, और हरे कृष्ण चल रहे हैं, अभी हरे कृष्णा बोल रहे, इन्हें टेंशन हेला, उसमें श्रद्धा नहीं है, भगवान के नाम पे श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, वो हो रहे हैं आप भी रिपीट कर रहे हैं। ये 4 चीज ना मत, आप भौतिक दुख से मुक्ति देती है पर भक्ति कभी नहीं दिलाती। इसलिए व्यक्ति को श्रद्धा नामाभास होना चाहिए कि जो जप में श्रद्धा होना चाहिए। परंतु ये श्रद्धा जो होता है नामाभास, वो भी 2 प्रकार के, प्रतिबिंब और छाया। प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन, जैसे मैं कहा ना, आप कोई शुद्ध भक्त की नाम जब को देख के आप अप्रिशिएट करते हैं और उनके साथ आप बैठ के जब जब करते आपको लगता है कि मैं भी ऐसा ही जब कर, भी ऐसा ही लगता है कि हम भी ऐसा ही जब कर, परंतु उसमें उतना श्रद्धा नहीं, बहुत हल्का श्रद्धा। कभी कभी व्यक्ति को इसमें मायावादी की तरफ, मतलब उनको लगता है कि मैं भी शुद्ध भक्त बन गया, मैं भी मेरा गुरु जैसा हूँ, नहीं गुरु से ज्यादा हूँ। जब देख रहा गुरु सो रहे हैं मैं तो सो नहीं रहा हूँ, तो एप्रिसिएशन के साथ गुरु के प्रति ईर्ष्या भाव रहते हैं, तो अच्छा जब कैसे कर रहे हैं आप भी कर लेंगे, कंपटीशन में चले जाते हैं।
इसको कहते हैं प्रतिबिंब नामाभास। तो इस प्रतिबिंब नामाभास में रिफ्लेक्शन लगता है कि मैं भी वैसा हूँ। रिफ्लेक्शन में देखते हैं ना कि मैं भी वही हूँ। इस प्रकार की एक मनोभावना है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति जब कर रहे हैं कोई गुरु को स्मरण करते हुए जब कर रहे हैं गुरु का, तो लगता है कि मैं गुरु से भी अच्छा जप करने वाला बन जाऊं। कभी कभी होता है ना, कोई गुरु महाराज भागवत सप्ताह बहुत अच्छा देते, शिष्य को लगता है कि मैं भी उनकी जैसे देता हूँ, और धीरे धीरे वो करता है कि मैं मेरा गुरु से भी ज्यादा एक्सपर्टी देता हूँ। कुछ वक्त को लगता है कि ना वो प्रचारक बनते हैं, उनको लगता है कि मैं गुरु से भी अच्छा प्रचार करता हूँ। ये सब एक्चुअली एक लेवल की प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन ये नामाभास। परंतु इसमें श्रद्धा है, थोड़ा श्रद्धा है नाम के, वो पूर्ण श्रद्धा नहीं है पर थोड़ा। और इसमें दूसरा है छाया नामाभास। छाया नामाभास मतलब छाया मतलब शैडो। आप एक शुद्ध भक्त की जब देख रहे हैं, विश्वास हो रहे हैं, आप भी उन्हीं के अनुयायी होके अनुसरण करना चाहते हैं, उनके नाम जिस प्रकार हो विधि को अपना रहे हैं, उस विधि को अपना परिस्थिति में अपने सिचुएशन में उसको प्रैक्टिस करना चाहते, नॉट विथ ए कॉम्पिटेटिव मूव, नॉट इमेजिनिंग दैट इज चैंटिंग लाइक दैट ऑफ गुरु, बट वो अपना एंडीवर कर रहे हैं अपना जप को करने। ये है छाया। इसमें हमेशा गुरु के आश्रय चाहते हैं, गुरु की कृपा चाहते हैं। गुरु जी आपकी सेवा करना चाहता हूँ, ताकि आप प्रसन्न होंगे ना, जरूर हरिनाम के प्रति रुचि। मतलब he is not seeing only japa, holy name, he is seeing service to guru as prominent। भगवान गुरु की सेवा करते हुए एक मकसद के साथ रहते हैं कि गुरु प्रसन्न होंगे, तो नेचुरली हरिनाम मेरे प्रति आशीर्वाद है। he is not trying to achieve holy name। बहुत बार होते ना, मैं ऐसा जप करूंगा, मैं कंट्रोल ले लूंगा पूरा नाम के ना, पूरा सुन के मैं अपना, उस मनोभावना बिल्कुल ठीक नहीं। हम चैंटिंग करने के समय हरिनाम के ऊपर हम आशीर्वाद की याचना करते, आशीर्वाद की याचना करते हुए हरिनाम से पूछना है, मैं गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरे को कृपा दीजिए, आपके प्रति रुचि दीजिए। इस प्रकार की याचना से जब जप करते हैं उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, छाया नामाभास। छाया श्रद्धा नामाभास। इसमें श्रद्धा बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे गोलोक की तरफ जाएंगे। पर जो व्यक्ति प्रतिबिंब रिफ्लेक्टिव नामाभास चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग मतलब रिफ्लेक्शन की, इसमें उनको लगता है कि मैं भी मेरा गुरु जैसे जप कर रहा हूँ, वो उसको इमिटेट करते हैं। बेसिकली कैन डिफरेंशिएट लाइक दिस। जो प्रतिबिंब चैंटिंग जो होता है, नामाभास होता है, उसमें पर्सन इमिटेट करते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने अकेला बैठ के उन्होंने जप किया है, तो मैं भी ऐसा जाके जप करूँ, मैं भी हरिदास ठाकुर जैसे बन जाऊंगा, ये प्रतिबिंब। उसमें व्यक्ति क्या होता है, नेचुरली डाउनफॉल होता है। शास्त्र में कहते हैं ऐसा जप करने वाला क्या होता है, उनको डाउनफॉल होता है। ऐसा हरिनाम खुद उनको विनाश कर देते। जो हरिनाम जो मदद करने वाला वही हरिनाम उनको विनाश कर। हमको वी शुड नॉट इमिटेट, वी शुड फॉलो, शुड फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ प्योर। किस प्रकार भगवान के नाम पे श्रद्धा रखा, मैं भी अपना स्तर पे अपने परिस्थिति में मैं भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा रख के आगे बढ़ूंगा और हरिनाम से कृपा की याचना करूँ। I will ask mercy from chanting. I cannot attain pure chanting. Pure chanting, भगवान की शुद्ध नाम करना हमारा हाथ में नहीं, हमारा बस की बात नहीं है। वो भगवान जब तक कृपा देंगे नहीं होगा। पर भगवान कृपा कब देते हैं, भगवान कृपा भरपूर के कब देते हैं, जब हम गुरु की सेवा करते। इसलिए जो इसमें जो छाया नामाभास जो
जो नामाभास में जो व्यक्ति सीरियसली फॉलो कर रहे हैं, वो गुरु की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। गुरु की सेवा करके उनको प्रसन्न करने से उनको पता है कि जरूर गुरु प्रसन्न होंगे, कृष्ण भी प्रसन्न, कृष्ण प्रसन्न होंगे तो हरिनाम मेरे ऊपर कृपा, जब हरिनाम कृपा रखेंगे तो आपके नाम क्या धीरे धीरे शुद्ध शुद्ध नाम के प्रति, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए अब देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने इस हरिनाम चिंतामणि की जो चर्चा में और एक चैप्टर में प्रवेश करते हैं, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य हरिदास ठाकुर से पूछ रहे, कहाँ पूछ रहे हैं, हम कल दिखाए थे ना वीडियो में, हम लोग सिद्ध बकुल में हर दिन चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने आते थे, उनके साथ संभाषण, एक वर्ष है उसमें बहुत सुंदर हरिनाम चिंतामणि में, वो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। ठीक है, गदाधर प्राण जय जानव जीवन, जय सीता नाद श्रीवासादि भक्त जना। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं गदाधर प्राण जय, गदाधर प्राण कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु, जानव जीवन द लाइफ ऑफ नित्यानंद, नहीं जानव जीवन, नित्यानंद प्रभु द लाइफ ऑफ जानवा देवी, जानवा देवी की जीवन कौन है, नित्यानंद। तो ये सीतानाथ, सीतानाथ कौन है, अद्वैताचार्य, श्रीवास आदि भक्त जन, श्रीवास ठाकुर, इन सबको उन्होंने प्रणाम कर और कहते हैं प्रभु बोले हरिदासा सह विस्तार, नाम अपराध वाक्य करो परा। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से कहते हैं, वो हरिदास मेरे को नाम अपराध, नाम अपराध वाक्य है, नाम के प्रति जो हर प्रकार के अपराध के बारे में थोड़ा विस्तार रूप में बताइए। वो क्यों पूछते नाम अपराध के बारे में विस्तार रूप में, कहते क्योंकि हरिनाम 3 स्टेजेस में होता है। एक है नाम अपराध, जो हरिनाम करने के समय अपराधों को ख्याल नहीं रखने की, हम हर समय अपराध करते रहते हैं और नाम माला लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि हम लोग लगता है कि माला लेके बैठ जाने से जो भी अपराध मैंने किया वो सब मुक्त हो जाएंगे। नहीं, इतना अपराध करके बैठा है हम लोग 22 घंटा, 2 घंटा नाम जप करने के समय ना रुचि रहते उसमें, ना इच्छा रहता है, कभी कभी लगता है कि प्रेशर में जप करूं, क्योंकि प्रभु लोग को कहाँ है करने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इस प्रकार के मनोभाव से जप नहीं कर पाए, इसलिए महाप्रभु यहाँ पे हरिदास ठाकुर से कह रहे हैं, बताओ इस नाम अपराध क्या है, इससे कैसे खुद को बचाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यू आर नॉट केयरफुल अबाउट अवॉइडिंग नाम अपराध को, जब तक आप अपने जीवन से मुक्त नहीं होता है, खुद को नाम अपराध से खुद को बचाएंगे नहीं, हरिनाम आपको बचा नहीं पाएगा। वही हरिनाम आपको क्या करेगा, धीरे धीरे को नाश कर। तो हरिनाम को मदद चाहिए, हरिनाम के प्रति रुचि चाहिए, तो नाम अपराध को से बचना चाहिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, बोलो नाम अपराध वाक्य करो तब परा, आप विस्तार रूप में नाम अपराध के बारे में प्लीज कहिए, बताइए करके हरिदास ठाकुर से पूछते। फिर हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, हरिदासा बोले प्रभु मोरा या बाला है, ताहा ये बोली बामी तुम्हारा प्रभावे। हरिदास ठाकुर कहते हैं, वो महाप्रभु मैं जरूर बताऊंगा, बट ये जानना जरूरी है सब पूरा दुनिया को, मैं जो भी मैं कह रहा हूँ आपकी कृपा से ही कर पा, ये मेरा कुछ नहीं है, आपने शक्ति दिया है, पर उस शक्ति के माध्यम से ही बलिब अमित तुम्हारा प्रभाव, आपकी जो प्रभाव से ही मैं कुछ बोल पाऊंगा। और कहते हैं बहुत सुंदर, क्या क्या अपराध से खुद को बचना चाहिए, वेरी नाइस। नाम अपराध दश विधा शास्त्र को है, से ही अपराध मोरा बड़ होए भय।
10 प्रकार के नाम अपराध है। नाम अपराध दशविधा कहते हैं। नंद कहते हैं से अपराध मरा बड़ा होय भाई, ये फर्स्ट क्वालिफिकेशन। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि आई फील वेरी फियरफुल ऑफ दिस 10 ऑफेंसेस। See, only when you fear Maya, na, you can protect yourself from Maya. और भक्त को लगता है कि माया के साथ मैं ऐसा ही खेलूंगा, दाएं हाथ का खेल, दाएं हाथ का, मैं लेफ्ट हैंड से ऐसा हैंडल करूंगा। तो लेफ्ट हैंड से हैंडल करने लगता है कि बाद में देखा खुद डूब गया माया, माया में इतना डूब गया है कि उनको पता नहीं चलता कैसे बाहर निकल। तो माया से डरना बहुत जरूरी है। माया एक स्त्री नहीं है। एक मिनट, ट्रेन चलेगा। आवाज आ रही है क्या? तो आवाज नहीं आ रहा है प्रभु। नहीं आ रही क्या? नाम अपराध दश विधा शास्त्र से अपराध मोरा बड़ा भय आय। तो जब तक हम भगवान माया को भय नहीं करते तो हम कृष्ण की शरणागत में नहीं हो पाए। सफिशिएंट फियर, नॉट टू मच फियर ऑल्सो। टू मच फियर होने से क्या होता है, हम दुनिया में बैठ के जब भक्ति नहीं कर पाए तो लगता है कि हम लोग हर चीज से मुक्ति चाहते हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा। सफिशिएंट भाई मतलब क्या है, अब एक लेटर ने कि माया के साथ मैं हैंडल करूंगा। माया कोई स्त्री नहीं है। माया मतलब जो भी चीज इस दुनिया में है जो कृष्ण के विरुद्ध अपना संभोग करना चाहते हैं उसको माया कहते हैं। कृष्ण के अलावा हम उस चीज को संभोग करना चाहते हैं, तो उसमें जब जैसे घुसेंगे अब डूब जाएंगे। देखा, एक्सपीरियंस है सबका। कोई कह सकते हैं मेरे को मुझे माया का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसा कोई है यहाँ पे? आकाश में लगता है ऐसा? माया मेरे दाएं हाथ का खेल है तो ऐसा ही मैनेज कर दूंगा, ऐसा संभव नहीं है। माया को सर हैंडल करने के लिए बहुत सोच विचार करना पड़ता है। ये भय होना चाहिए। हैंडल तो करना पड़ेगा बट हैंडल करने के समय शुड बी केयरफुल। वन इज नॉट केयरफुल बिकम केयरलेस। केयरलेस हो जाता है व्यक्ति, उसकी आपत्ति में गिरने के बाद भी उनको समझ नहीं पाते हैं कि मैं एक डेंजर पर्सन। इसलिए कहते हैं से अपराध मोरा बड़ो होय भाई। I fear those 10 offenses because they are the places of Maya. What are the 10 offenses? कहते हैं एक एक कोरियामी बोली वो सकला अपराधे वांची आते देह मोरे बोला। कहते हैं कि मैं इसके बारे में विवरण करूंगा एक एक के बारे में विस्तार रूप में, परंतु हरिदास ठाकुर कहते हैं परंतु वो कहते हैं कि मेरे को आप थोड़ा शक्ति दीजिए इस अपराध से बचने के लिए। See, the strength to avoid offenses will also come from holiness. It will come from Krishna. जो शक्ति है नाम अपराध से बचने के लिए वो हरिनाम से ही मिलती है। हमको हमेशा वो प्रार्थना की याचना रखना चाहिए। वो हरिनाम आपकी मैं जब करने वाला हूँ, परंतु पता नहीं नाम अपराध की जो इस प्रकार अटैक करेगा, आप मेरे को शक्ति दीजिए उसे बचने के लिए। और क्या है 10 अपराध? वो कहते हैं ये आफ्टर सेइंग दिस वी विल स्टॉप फॉर डिस्कशन एंड नेक्स्ट वीक से हम लोग एक एक ऑफेंसेस के बारे में डिटेल जो हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कह रहे थे
भक्तिनाथ ठाकुर की जो मेन वर्क है अभी से चालू है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क विच हैज each and every offense is elaborately explained and telling how one should devotee should avoid, कैसे भक्त अपना नाम अपराध से बच सकते। तो क्या क्या नाम अपराध, दशविध नाम अपराध, साधु निंदा अन्य देवा स्वातंत्र्य मोनना नाम तत्व गुरुवारा शास्त्र विनिंदना हरिनामे अर्धवाद कल्पित मनना नाम बोले पाप श्रद्धा हीना नामार्पणः अन्य शुभ कर्मेरा समान कृष्ण नाम एकदा बोलिले अपराध अविश्राम। 10 प्रकार के नाम। पहले क्या है, साधु निंदा, वैष्णव की निंदा करना। सबसे पहले जो वैष्णव हरिनाम के गुणगान को पूरा दुनिया में बांटे, ये सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपराध जो हरिनाम के प्रति। जब वैष्णव का अपराध करने से एक्चुअली आप हरिनाम का अपराध करते, क्रिटिसाइज करते। क्रिटिसाइज करना अपराध मतलब क्रिटिसाइज करना, वैष्णव को क्रिटिसाइज करना। दूसरा वैष्णव निंदा, अन्य देव स्वातंत्र्य मनना, जो भी देवी देवता के नाम लाइक शिवा ब्रह्मा, ये सब भगवान से अभिन्न, भगवान से स्वतंत्र है, ये मानना बहुत बड़ा गलती और बड़ा बड़ा अपराध है। इसको पाषंडी कहते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण के नाम से ब्रह्मा और शिव जी का नाम बराबर मानते हैं, या फिर कृष्ण के नाम से ब्रह्मा और शिव जी का नाम स्वतंत्र मानते हैं, दोनों अपराध। तीसरा, इसका मतलब है, एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है, हम लोग एक एक करके लेंगे। तीसरा अपराध है नाम अपराध, वो है नाम तत्व गुरु आर शब्द निंदना, गुरु की निंदा, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर। जो गुरु ने आदेश दिया कुछ करने के लिए, बोलते रहते गुरु क्यों पर टाइम पास। ये इस तरह की मनोभावना रहेगा तो वो अपराध है। इसलिए कभी देखते हैं आपके नाम में रुचि नहीं बढ़ती, क्योंकि शायद गुरु की आज्ञा को अवज्ञा कर आप तिरस्कार कर रहे। और तुरंत शास्त्र विनिंदना, तो जो शास्त्र जो हरिनाम के बारे में बताया उसको आप सीरियसली नहीं लेना, ब्लास्फेमी, उनको निंदा करना, वो भी नाम अपराध। और पांचवा, हरिनाम अर्धवादा कल्पित मौनिना, मतलब नाम की जो हरिनाम की जो गुणगान जो बताया, वो सबको हम कल्पित मानते, इमेजिनेशन। अरे ये सब इमेजिनेशन, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। एक नाम इतना शक्ति है, पूरा पाप जो आप कभी भी नहीं कर सकते उतना पाप को साफ करने का। ऐसे कैसे संभव है? ये तो इमेजिनेशन लगता है। इस तरफ की मनोभावना रखना भी वैष्णव निंदा, नाम निंदा, नाम अपराध। और 6 5 हो गया। तो और 5 क्या है? कहते हैं नाम बले पाप श्रद्धा हीन नामार्पण। 6 नंबर 6वां क्या है? तो नाम के बारे में कुछ इंटरप्रिटेशन करना, हरिनाम के बारे में कुछ इंटरप्रिटेशन, अपना खुद के मन की बना हुआ कुछ कहना हरिनाम, वो भी नाम अपना। और 7th वन, नाम की शक्ति पे, हरिनाम की शक्ति बल के ऊपर हम पाप करते रहते। अगर आज पाप कर लिया ठीक है, हरिनाम कर लेंगे ना, साफ हो जाए। इस तरफ की मनोभावना सबसे बड़ा नाम अपराध। नाम बले पाप श्रद्धा हीन नामार्पण। के बाद 8th ऑफेंस, 8th वन क्या है? अन्य शुभ कर्मेर समान कृष्ण नाम, मतलब कृष्ण नाम को जो भी शुभ कर्म हम करते हैं ना, लाइक होम हवन यज्ञ पूजा, हम करते हैं कि चैंटिंग और पूजा एक ही है।
अरे तुम चैंटिंग कर रहे मैं पूजा कर रहा हूँ, एक ही बात हुआ ना, ये गड़बड़ है। घर पे बोलते हैं ना, तुम चैंटिंग कर रहे हम पूजा कर रहे हैं, इसमें दोनों में एक ही बात है, कर रहे हैं तो बोलना है कि ये अपराध है, ऐसा कभी खुद को नहीं सोचना है। नाम अपराध, सॉरी, हरिनाम की जप है ना, सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। चाहे आप हजार हजार यज्ञ भी करेंगे, उसका फल इतना नहीं मिलता है जब नामाभास में कोई जप करते हैं। तो नाइन्थ ऑफेंस क्या है? ये नाइन्थ ऑफेंस है, जो जिसके पास जो श्रद्धाहीन नामार्पण, जो श्रद्धा नहीं है व्यक्ति के प्रति, तो नाम के बारे में बताना ना। कभी कभी होते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं बट उनको हरिनाम के बारे में सुनना नहीं है, हरिनाम में इंटरेस्ट नहीं है। मान ली उनको भी मैं हरिनाम को गुणगान कहूंगा इतना डिटेल, वो नाम अपराध हो गया, मतलब मेरे तरफ से नाम अपराध हो गया। कि नाम के बारे में इतना क्यों कह रहा हूँ, लोग तो सुनते नहीं है, फॉलो नहीं करते, इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उनको क्यों कह रहा हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए। ये दिस इज ऑफेंस। एंड 10th ऑफेंस इज श्रद्धा चैंटिंग के नाम, चैंटिंग के प्रति नहीं है, परंतु बहुत प्रकार की भौतिक इच्छाओं के प्रति आकर्षण व्यक्ति का, भौतिक इच्छाओं के प्रति इतना आकर्षण बढ़ गया है कि नाम अपराध करते हुए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ते, लेकिन उनके अटैचमेंट मटेरियल थिंग्स के प्रति। ये 10 ऑफेंसेस है। हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु को यहाँ पूरी मंदिर, पूरी में सिद्ध भगवान में थे, और इसके बाद हरिदास ठाकुर एक एक को लेके एलॉबरेट करते। In our next few classes Harinam Chintamani, we will discuss on this 10 offenses elaborate. क्या ये ऑफेंस है, मतलब वैष्णव निंदा मतलब क्या है रूप में, और इसको कैसे अवॉइड करना है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ कि कुछ पॉइंट्स या भक्त कहना चाहते हैं आज की चर्चा में, some point they want to share with others, बिकॉज ना क्या होता है, हम क्लास लेते हैं बट लोग ना उसको जब ध्यान से सुनेगा नहीं, पॉइंट नोट नहीं करेंगे तो मतलब नहीं बनता। वो तो फिर ये हो गया ना, हम सुन रहे हैं नाम के बारे में बट हमारा भौतिक इच्छा इतना स्ट्रांग है, इतना अटेंशन नहीं देते, ठीक है चलने दो यार, इस प्रकार की जब नहीं। तो आज की चर्चा में कुछ पॉइंट्स कहना चाहते हैं भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। आप बोले तो आप सेकंड जो अपराध कहे, नाम अपराध, जो ये वो नहीं समझी, मतलब कौन सा? वो सेकंड जो अपराध आपने कहा ना अभी कि क्या मतलब दूसरे देवी देवता को मतलब भगवान। मान लीजिए आप शिव जी का नाम ले रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, व्हाट इज दैट पंचाक्षर शिव जी का? नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय दिगंबराय दिव्या नमो नकाराय नमः शिवाय, ऐसा नमः शिवाय के ऊपर एक सुंदर का श्लोक आप वो पढ़ रहे हैं, शिव जी का आराधना कर रहे हैं, मान लीजिए शिव जी का आप उसको आदर दीजिए। प्रभु जी मैंने ये नमः शिवाय का मंत्र जप कर लिया, अभी हरिनाम नहीं करूंगा, क्या जरूरी है, एक मंत्र हो गया है, कृष्ण नाम लो, शिव जी का नाम एक ही है। इस प्रकार के मनोभावना रखना ठीक, ये नाम अपराध है, समझ रहे? हाँ प्रभु जी। कोई डिवोटी कुछ पॉइंट्स बताना चाहता है आज की जो चर्चा में? You unless you don't speak, you will never remember. या हरे कृष्णा प्रभु जी। कामराज को बताएंगे इसके बाद। यस कामराज, राइट। Try to endeavor to be in the Chaya Namabhas. Just trying to see how we can
is Krishna or Guru and Krishna. That is the only way we can actually go beyond this. Just like our endeavor and that the mercy of Krishna and Guru is there, and only we can transcend the Namabhasa. We always say like in case if we are not chanting Nama and Chaya Namabhasa come out of the Pratibimba Namabhasa. Like always our mind tricks us that we are doing better or we have this quality much better than others. That comparison and we see ours is significant than others. At least the key takeaway for me is to come out of the Namabhasa and to enter, try to endeavor to at least enter Chaya Namabhasa. तो छाया नामाभास मतलब क्या है कि हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, इसलिए मैं जप कर, गुरु की सेवा करते हुए गुरु की प्रसन्न करूंगा, मैं वैष्णव के संग में रह के सेवा करूंगा, समर्पण रखूंगा, और वैष्णव जब प्रसन्न होते गुरु प्रसन्न होंगे, गुरु प्रसन्न होते हरिनाम प्रसन्न होंगे, प्रसन्न हरिनाम जब प्रसन्न हो जाता है हमारे भक्ति से, वो हमको रुचि देगी। ये इस तरफ की भावना रख के हरिनाम के शरणागत आश्रय लेना चाहिए। ये नहीं कि ना मैं हरिनाम की कंट्रोल में ले लूंगा, अरे मेरे गुरु ही जप करेंगे क्या, अच्छा मैं उनसे भी बढ़िया जप करूंगा, उनसे भी ज्यादा माला करूंगा, और मैं माला ज्यादा करके दिखाऊंगा दुनिया को, मैं एक्स्ट्रा माला कर रहा हूँ, इतना बढ़िया हूँ। ये तरफ की मनोभावना करते प्रतिबिंब नाम। भैया सोमनाथ। Prabhuji, you told one point that many yagnas, what result cannot give to us, but from pure Namabhasa stage we can get that result only. That point I want to say. वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, पूजा पाठ करिए, होम हवन करिए, बट ये कभी नहीं सोचना है कि ये हरिनाम में उतना शक्ति नहीं है जितना हवन में है, ये नहीं सोचना। बिल्कुल, इनफैक्ट एक हरिनाम इतना शक्ति है कि जो भी हवन होम अपना सालों से कर रहे, जीवन भर कर रहे, उसमें भी उतना शक्ति नहीं है जो एक हरिनाम में, शुद्ध हरिनाम में जप करने में। इसलिए we should prioritize chanting always, beyond above all the homas and sacrifices. Very nice. Yes, any other point? What do you want to share? Yeah, Krishna Brahmi. Prabhu, we discussed that one should be fearful about Maya, and if you are not fearful about Maya, then you won't get seriousness in the bhakti. In this point, I just wanted to ask you that. So how do we recognize the Maya? Identify, because Identify Maya. एक प्रश्न I think कुछ दिन पहले कोई devotee because sometimes it comes in the form. Because sometimes it comes in the form of our friend or a family member or your close relative. It is a situation of your mind. It's not about a person or a relative or a friend or a thing, material thing. It's a situation of your mind. For example, in front of you, I have a mobile. Okay, if my mind is about enjoying things separate from Krishna, then मैं क्या करूँगा, मोबाइल लेके मैं ऐसा चीज एक्सेस करने का प्रयास करूँगा। मान लीजिए आपकी मन की सिचुएशन है कि मैं कृष्ण के बारे में और जानना सुनना चाहता हूँ, तो ये सेम मोबाइल लेके आप वेदाभ्यास खोल के पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं, या फिर भक्त का कुछ वीडियो, कृष्ण की वीडियो समझ रहे ना। ये मन की सिचुएशन है, वो बताएगा कि आप माया में हैं कि आप आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, क्या बोलते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा तारे प्रेम नाम। सो कहते हैं कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, कोई भी इस प्रकार की प्रीति वांछा, मेरा खुद की संतुष्टि करना है, ऐसा ये मनोभावना रहते हैं, वो एक्चुअली काम है। पर कृष्णेंद्रिय प्रीतिवान, कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने का जो इच्छा रहते हैं, उसको प्रेम कहते हैं।
प्रेम करे प्रेम नाम। इस प्रकार ये व्यक्ति को ये समझ सकते हैं, और इसलिए इस मनोभावना से हमको डरना चाहिए। मैं माया को एंजॉय करूंगा, अरे ढाई आज का खेल है, थोड़ा एंजॉय करके देख लूंगा। तो एंजॉय थोड़ा तो करना चाहिए, थोड़ा करना चाहिए, बट वो थोड़ा एंजॉयमेंट भी कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं। हम खाते हैं ना, हम लोग कल जगन्नाथ प्रसाद चूज किया, ये खिचड़ी लेंगे, वो स्वीट लेंगे, वो भी लेंगे, उसमें हमारा एंजॉयमेंट है, बट वो कृष्ण से जोड़ के रखा। और कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा रात